Is doing GMAT really worth it? Now that's the first question which comes in the mind of any aspirant, because why not? इतनी बड़ी amount, literally 275 US dollars at the present date is a huge amount of money which people are asked to pay for the application fee. बस एक application fee के लिए इतने पैसे? Of course you should ask this question to yourself before taking the decision कि आपको GMAT देना चाहिए या नहीं. But in this video I'm going to talk about a mind-blowing data analysis which will definitely, as I said, blow your mind, because जो डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ उसके बाद GMAT के लिए आपका पर्सपेक्टिव completely बदल जाने वाला है. So welcome to my channel everyone. This is Priyasha Das, where all the myths about MBA are demystified. तो चलिए बात करते हैं GMAT के बारे में. Now the first question which I'll put forward is, do you think that because of this large application fee, the number of applications would be reduced, or let's say competition will be less? Somewhat yes. Yes, why not? Of course foreign universities के लिए इतना ज़्यादा बड़ा amount नहीं है, but Indians के लिए ये है. So kind of yes. But the second question is really interesting. Do you think that because of this high range of application fee, the serious aspirants only give this examination? Well, the answer is no. And the data or the statistics which I was going to present is this, that 6 out of 10 folks in GMAT are not serious aspirants. By that I mean they somewhere around score less than 300 to 350, and you would be like, ये तो किसी major colleges का cut off भी नहीं है. And you are absolutely right. तो फिर are we the ones which are 4 out of 10 people who are serious? Of course, if you are watching this video till now, then you are among those 4 to 10 people जिनकी dreams में ये definitely है कि वो foreign जाके top universities से पढ़ाई करे, but somewhere or the other because of the constraints like application fee and other खर्चे वो इस चीज़ को रोक रहे हैं. तो आपके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के ड्रीम्स एंड रियलिटी के बीच जो अच्छे कंटेंट का और सपोर्ट का गैप है उसे पूरा करने के लिए PW है ना. सो द लोएस्ट मिनिमम प्राइस एवर फॉर एनी GMAT बैच इज देयर, ऑफ कोर्स नो डाउट, presented by PW, where they have come up with MBA वाला stellar batch of 2024, जहाँ पर आपको टॉप टीचर्स से लाइव क्लासेस दी जाएंगी, DPP मटेरियल दिया जाएगा, वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, 10,000 प्लस उनका क्वेश्चन बैंक है जो कि आप रेफर कर सकते हो. एंड ये सब इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो इस बैच में प्रेजेंटेड है. बट इफ़ यू यूज़ माई कोड CRA 200, देन इतना सब कुछ का प्राइस जो कि 25,999 है वो आपको सिर्फ 12,999 में मिल जाएगा, विच इज़ अ वेरी लेस अमाउंट. एंड इससे कम में आपको GMAT की प्रिपरेशन कोई और इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहा है. सो इफ़ यू आर रियली प्लानिंग टू गो टू हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड, येल, MIT एंड एक्सेट्रा, इसकी लिस्ट कम नहीं होने वाली, then you can definitely try out PW. The link is there in the description box, and don't forget to use my code to apply the discount immediately. Well, come back to the real topic guys. Real topic था कि वो 6 लोग जो कि 300 या 350 से कम लाते हैं, आपको कैसे पता कि वो कम लाते हैं और वो क्यों कम लाएंगे भाई इतनी ज़्यादा फी देकर? तो लेट मी टेल यू द रियलिटी, स्पेशली द इंडियन स्टूडेंट्स. तो जितने भी अपर मिडिल क्लास, रिच, अल्ट्रा रिच फैमिलीज हैं, they need one reason to brag about their kids, and that one thing is asking their kids to study abroad. Of course if they do that, now आपने किसी शर्मा जी, गुप्ता जी के अंकल आंटीज़ वालों को सुना होगा ये बोलते हुए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स कर रही है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. Well, this is one reason why you see the 6 out of 10 ratio here, जहाँ पे 6 लोग जो है वो serious aspirants इसलिए नहीं है because they are literally forced by their parents to study in those foreign universities so that the parents can brag about them. क्योंकि जनरली क्या होता है कि only 2 out of 10 rich brads are the ones who are really intelligent. Okay, so हो सकता है कि वो 20% ऑडियंस है जो कि रियली GMAT में अच्छा स्कोर करके अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई कर ले, बट मोस्ट लाइकली द 80% ऑफ द रिच ब्रैड्स आर द ones who score less than 300 or 350 in GMAT.
बट देन फिर भी वो फॉरेन चले जाते हैं, ऐसा कैसे? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ जस्ट लाइक इन इंडियन एवरेज यूनिवर्सिटीज़ यू विल फाइंड दैट उनको सिर्फ आपका आधार कार्ड 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए टू गेट यू इन द कॉलेज. द सेम थिंग हैपन्स फॉर द फॉरेन के एवरेज यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, जिनके लिए GMAT इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विच दे नीड फॉर देयर फॉर्मेलिटी. सिर्फ फॉर्मेलिटी सेक के लिए वो पेपर लिया जाता है, एंड दे रियली आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ मच यू स्कोर इन द GMAT एग्जामिनेशन. सो उससे उनकी एडमिशन वहाँ हो जाती है. एंड फिर आपको वही शर्मा जी और गुप्ता जी ये बोलते हुए सुनाई देंगे कि मेरा बेटा तो जर्मनी में पढ़ रहा है, मेरा बेटा तो US में पढ़ रहा है. बट देन यू विल आस्क, अंकल जी थोड़ा ये भी बताइए कि यूनिवर्सिटी की नाम क्या है. प्लीज़ ऐसा मत करना, हाँ, दीज स्टंट्स शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इन योर नेबरहुड. Okay, so coming back to the topic again, that yes, you can definitely fulfill your dreams of studying abroad at a very low price also, because if you are really genuinely serious, then आप इतनी मनी स्पेंड कर देने के बाद GMAT में डेफिनेटली बहुत सारा खर्च बचा सकते हो अपनी कोचिंग पे. एंड उसके बाद आप जब एक बार टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हो तो वहाँ पर आपको स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी. मीन्स ऑफकोर्स यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, एंड उसमें आपका खर्चा पानी अच्छे से निकल जाएगा. एंड द टॉप 20 colleges which take the GMAT scores have an average package बोल रही हूँ of around 1 crore in Indian currency, which is really good and worth your investment which you are making right now. So do not worry about that part. But I have 3 more supportive reasons why you should definitely think about giving GMAT examination, and if it would have been during my time I would have definitely done that. The first thing is that of course अभी का एग्जाम सिर्फ 2 hours और 15 minutes का है, एंड सपोर्टिंगली इट इज नॉट हैविंग द एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन एनी लॉन्गर. सो नो essays. The ones who really had that writing phobia can take a deep sigh of relief, because आप लोगों को अब बस quants, verbal और data insights, which is more like DILR, उस पर फोकस करना होगा. एंड द एग्जाम ड्यूरेशन इज ऑल्सो रिड्यूस टू 2 hours and 15 minutes. द सेकेंड बिग रीजन वाई शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट GMAT इज, जो कि डेफिनेटली अगर पहले होता ना तो बहुत मज़ा आता. लिटरली इस वजह से बहुत ज़्यादा कमाई की है GMAT ने, एंड बहुत सारा नुकसान झेला है एस्पिरेंट्स ने. व्हाट वाज दैट? अर्लियर दे यूज्ड टू गिव यू द स्कोर्स लेटर, एंड उससे पहले ही आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना होता था. द रीज़न ऑफ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड वाज दैट बहुत सारे कॉलेजेस के थोड़े बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे होने की वजह से आपके चांसेस और आपका मनी थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाता था. बट नाउ द थिंग इज दैट अलॉन्ग विद दिस मनी विच यू आर पेइंग फॉर द GMAT एप्लीकेशन फी, यू गेट अ चांस टू सेंड एप्लीकेशंस टू 5 यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट मीन्स उसी में इंक्लूडेड है. एंड अगर आप इससे ज़्यादा भी एप्लीकेशंस भेजना चाहते हो तो देयर इज़ अ एडिशनल चार्ज टू इट. Now, but that additional or good part is that after you give your exams, within 5 business days you will be getting your score, and after getting your scores you can then think and apply on the colleges for which you qualify. तो आपके पैसे भी बचे, है ना. एंड द थर्ड लास्ट रीज़न विच इज़ वन स्टैंडर्ड रीज़न फॉर गिविंग GMAT, ये पहले से आता है एंड अभी तक ये एक बहुत स्टैंडर्ड रीज़न है टू गिव GMAT, दैट योर स्कोर इज़ वैलिड फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स. याद रहे कि GMAT के कॉलेजेस आपके प्रोफाइल पर बहुत फोकस करते हैं. तो इफ़ यू थिंक दैट आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करनी है तो आपके प्रोफाइल को आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए. एंड अगर आपको लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हो तो आप अभी एग्ज़ाम दे सकते हो कैलेंडर में किसी भी दिन. दैट्स द बेनिफिट ऑफ GMAT. एंड देन यू कैन थिंक ऑफ वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल. लाइक आप काम कर रहे हो तो आप 1 साल और काम कर लो. आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है तो आप उस पर काम कर लो. आप अभी इमीडिएटली इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते तो आप 1 साल 2 साल या कितने भी साल रुक जाओ टिल 5 years. एंड व्हेन यू आर रेडी, योर प्रोफाइल इज रेडी, गो एंड टेक अ फ्लाइट, बिकॉज आपने एग्जाम तो अभी दे दिया है जो कि वैलिड है फॉर 5 long years, and they do carry a lot of importance in many other activities as well. So if you found this video useful, you know the drill guys. You have to like this video, share it with more and more people, especially with those जो GMAT देने से कतराते हैं just because of the application fee. और ऐसे mind blowing facts और data जो मैंने आपके साथ share किए about why you should try GMAT, इसके लिए भी थोड़ा सा शेयर कर दो यार. द शेयरिंग विल कॉस्ट यू नथिंग बट विल हेल्प माई चैनल टू ग्रो अ लॉट. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. जस्ट हिट दैट subscribe button right now, okay? And if you have any more queries like this, feel free to drop it in the comment section. Do let me know how was this video. Thank you so much. Take care and see you in the next one. Bye bye.